Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, I come up with the most important current affairs of the day, 12th of November 2022. As usual, the video will be of two parts. The first part is going to be the analysis of the important headlines, and the second part of the video is going to be the question practice. The more specifically, I would say the important questions that have been extracted from the current affairs of 12th of November 2022. So let's get started with the headline analysis. First of all, let's talk about India. From the India, we have got PM Narendra Modi inaugurates the Terminal 2 of the Kempegowda International Airport at Bangalore. Next is PM unveils 108 feet long bronze statue of Sri Nadprabhu Kempegowda in Bangalore. This is very important. यहाँ पर आपको लेंथ याद रखना है. The statue is of 108 feet of Sri Nadprabhu Kempegowda in Bangalore. ठीक है, ये बात भी. Next is President D. Murmu launches various education related projects in Bhubaneswar, and after that here we got is Jharkhand Assembly passes the bill to raise the reservation of the categories to 77%. Remember this thing, this will hugely impact the education sector of the India. After that, talking about the economy and corporate, we have got Power and New Renewable Energy Minister R.K. Singh. He launched the Green Energy Open Access Portal. Point number one that you have to grip here is that who is the Minister of Power and New Renewable Energy? That is R.K. Singh. That's going to be R.K. Singh. This is very, very important. And after that, you have to remember that he launched the Green Energy Open Access Portal. After that, 9th ministerial meeting of the India-US Economic and Financial Partnership will be held in New Delhi. And US Department of Treasury removes India from its currency monitoring list. US Department of Treasury जो है उन्होंने इंडिया को अपनी currency monitoring list से remove किया. क्यों किया? क्योंकि बेसिकली जो कंट्रीज है वो 3 क्राइटेरिया को फॉलो करनी चाहिए ताकि वो लिस्ट में इंक्लूडेड रहे. अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इंडिया जो है ये एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करती थी. क्लियर? आफ्टर दैट, Moody's slashes India's GDP growth forecast for 22 by 0.7% to 7%. This is again important. And after that, the next one is industrial production grows 3.1% in September 2022, 3.1%. This is again going to be very, very important. Now talking about sports, sports में हमारे पास क्या है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अमान जॉर्डन जो हेल्ड किया गया था, कल भी हमने डिस्कस किया. 4 इंडियन वुमेन विन गोल्ड. उसमें 4 इंडियन वुमेन ने गोल्ड जीता. यहाँ पर आपको इन चारों का याद रखना है. इन चारों की क्या रखना है याद? इन चारों की information यहाँ पर आपको याद रखनी है. The first one is Lavlina Borgohain. Under the 75 kg she won gold. After that, second number पे याद रखना Parveen Huda. She is under 63 kg and she also won gold. After that, Saviti Bora under the 81 kg. Under 81 kg she also won gold. ये भी आप याद रखना. और यहाँ पर ये वाला जो थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अल्फिया पठान, she is 81 plus. ये आप याद रखना. She also won gold. Because यहाँ पर एक ही ऐसा पार्टिसिपेंट था जो 81 प्लस था. इन चारों में से इंडियन में अगर हम बात करेंगे तो दैट्स अल्फिया पठान 81 प्लस kg वाली. ठीक. Now let's talk about the important MCQs. अब यहाँ पर हम MCQs को डिस्कस करेंगे. जो भी MCQs हमने इस वाले करंट अफेयर्स से एक्सट्रैक्ट किए हैं. The first MCQ that we have got for today is question number 1. World Pneumonia Day is observed every year on 12th of November to raise the awareness about pneumonia disease. What is the theme of World Pneumonia Day 2022? Point number 1 that you all have to grip over here is that World Pneumonia Day is celebrated on 12th of November. Is that clear? And after that, अगर हम इस साल की बात करेंगे तो इस साल भी हमने 12th of November 2022 को ये क्या किया था, ये ऑब्जर्व किया था. जहां तक थीम की बात है, अगर हम थीम की बात करेंगे, थीम ऑफ 2022 में जो डे हमने सेलिब्रेट किया उसका अगर हम थीम देखेंगे, दैट वाज निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन. निमोनिया अफेक्ट्स everyone. So यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. दैट्स निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन. बेसिकली जो निमोनिया डे है इसको हम सेलिब्रेट हर साल क्यों करते हैं? द रीजन बीइंग कि जो पीपल है, जो पब्लिक है, उनको हम अवेयर करें अबाउट द डिजीज ऑफ निमोनिया. उनको ये निमोनिया डिजीज जो है इसके हम अवेयर करें, किनको? सारे के सारे लोगों को. इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ निमोनिया क्या है? निमोनिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स जब होती है उसको हम बोलते हैं निमोनिया. क्या ये बात भी क्लियर है? अगर आप इसकी बात करेंगे तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, पहले इसको ऑब्जर्व कब किया गया था? यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन फॉर द फर्स्ट टाइम. इसको ऑब्जर्व किया गया था 2009 में अगेंस्ट द चाइल्ड निमोनिया. ये भी आप याद रखिएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Question number two. Question number two here says PM Modi flagged off two trains, South India's first Vande Bharat Express and Bharat Gaurav Kashi Darshan train from the Kranti Veera Sangoli railway station in Bangalore in November 2022. ये हमने कल भी डिस्कस किया. अब the question is, question बोल रहा है द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विल रन बिटवीन मैसूरू एंड डैश डैश. ये मैसूरू एंड किसके दरमियान रन करेगी? पॉइंट नंबर वन जो हमने कल भी डिस्कस किया, जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने फ्लैग ऑफ किया दो ट्रेन को, साउथ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस एंड भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को. जहां तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात है, दिस विल रन इन बिटवीन मैसूरू एंड चेन्नई. दिस इज अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने कल भी डिस्कस किया. क्लियर? ओके, अगर हम वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करेंगे तो इट हैज द मैक्सिमम कमर्शियल स्पीड ऑफ, मैक्सिमम यहां पर मैं लिखूंगा maximum speed of 160 kilometers per hour. That means this is going to be very very speedy. Next question that we have got here is question number 3. Question number 3 okay. Question number 3 says who dash dash who played a pioneering role in the development of women's cricket in the world in India in the 1970s, passed away in November 2022. इनमें से कौन सा एक पॉइनियर था अगर हम देखेंगे वुमेन्स क्रिकेट का इंडिया में 1970s में, एंड वो इस दुनिया से चले गए 2022 नवंबर में. तो याद रखना महेंद्र कुमार शर्मा who played a pioneer role in the development of women's cricket in the India in 1970s and he passed in November 2022. ये आप याद रखिएगा. Clear? Okay, next question is question number 4. Question number 4 says noted writer dash has been awarded the 31st Bihari Puraskar for her 2018 नॉवल हम यहाँ थे. हम यहाँ थे एक नॉवल 2018 में पब्लिश की गई थी एक नोटेड राइटर ने, तो उसको अवार्ड दिया गया 31st बिहारी पुरस्कार. उस राइटर का हमें नाम बताना है, तो मधु कंकरिया. याद रखना मधु कंकरिया एक ऐसा राइटर है जिनको अवार्ड दिया गया था 31st बिहारी पुरस्कार फॉर 2018 नॉवल जिसका नाम था हम यहाँ थे. ये बात याद रखना. इसके अलावा डॉक्टर माधव हदा को याद रखना, इसको भी अवार्ड दिया गया था एज द 32nd बिहारी पुरस्कार. ये इसको दिया गया था, ये भी याद रखना. अगर हम कनकरिया की बात करेंगे, उसको अवार्ड दिया गया था हम यहाँ थे जो उसने राइटिंग की थी. वहीं पर अगर हम इसकी बात करेंगे, हदा की बात करेंगे, तो इसको दिया गया था पचरंग चोला पहाड़ साखीरी. पचरंग चोला पहाड़ साखीरी उसके लिए जो इसने 2015 में बुक पब्लिश की थी. क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि बिहारी पुरस्कार बेसिकली है क्या? बेसिकली दिस इज गिवन एवरी ईयर फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क पब्लिश्ड इन द लास्ट 3 years इन हिंदी एंड राजस्थान. याद रखना हिंदी या राजस्थान में ये दिया जाता है फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द राइटिंग इन द पास्ट 10 years और वी कैन से इन द पास्ट डिकेड. क्या ये बात भी क्लियर है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari has announced new projects of 1.6 lakh crores rupees for. पहला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है वो कौन है? याद रखना नितिन गडकरी इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. क्लियर है ये बात? अब उन्होंने अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट वर्थ 1.6 लाख करोड़. किसके लिए किया? नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वो प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था, वो वर्थ अनाउंस की गई थी. ये बात भी आप याद रखिएगा. अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा? दिस प्रोजेक्ट विल इंक्लूड, याद रखना, इसमें रोपवेज भी आएंगे, इसमें ब्रिजेस भी आएंगे, ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड अदर वाटर बॉडीज में जो भी मेजर ब्रिजेस लेंगे वो इसमें आएंगे. इसके अलावा आपको पता ही होगा कि नेशनल डे हमने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन को बोला, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है एपी आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब इसी में आते हैं. क्या ये बात भी क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट्स नॉर्थ ईस्ट नेशन रीजन. ठीक. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 says who has won the gold medal at the Asian Boxing Championship in the 75 kg women's category on 11th of November 2022. We just discussed this in the important headlines. किसने गोल्ड मेडल को जीता इन द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द 75 kg वुमेन्स कैटेगरी? 75 kgs वाली बात हो रही है, तो मैंने वहां पर आपको ये नोट भी करवाया था कि लवलीना बोरगोहेन जो है ये अंडर 75 kg वाली कैटेगरी में आती थी जिन्होंने गोल्ड को वन किया. क्या ये बात भी क्लियर है? इसके अलावा हमने बात की थी परवीन हुदा की, वो भी 22 years ओल्ड थी,
वो भी 22 ईयर्स ओल्ड थी, बट वो थी 63 केजीज के अंडर, ये भी याद रखना। तो उन्होंने भी गोल्ड को क्या किया था, गोल्ड को वन किया था। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया और कल भी हमने वो डिस्कस किया, दैट जो 22 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी वो हेल्ड की गई थी अमान जॉर्डन में। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट is question number 7. Question number 7 says Switzerland Tourism has appointed Dash as its friendship ambassador to showcase and promote locations in the country to the Indian travelers. स्विट्जरलैंड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसके लिए, फॉर द फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया, to showcase and promote the locations in the country to the Indian travelers. तो याद रखना, नीरज चोपड़ा is the person who was appointed by the Switzerland Tourism as its friendship ambassador. ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चोपड़ा के बारे में आप याद रखना, नीरज चोपड़ा जो है, इसके बारे में याद रखना, he has also donated, इसने डोनेट किया है गोल्ड विनिंग जेवेलिन टू द ओलंपिक म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड। कब किया था, सितंबर 2022 में इन्होंने वो भी किया था, वो भी डोनेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 says on 11th of November 2022 the country observed the birth anniversary of the freedom fighter dash. 11th नवंबर 2022 को कंट्री में किस फ्रीडम फाइटर की बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया था। तो यहाँ पर जेबी कृपलानी याद रखना, ही इज द फ्रीडम फाइटर जिसकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता है 11th ऑफ नवंबर को हर साल। ठीक है ना। इसका ओरिजिनल नेम क्या है, जेबी कृपलानी। इसका ओरिजिनल नेम अगर देखोगे तो वो है जीवत्रम भगवानदास कृपलानी। याद रखना, इसको कॉमनली हम जानते हैं आचार्य कृपलानी के नाम से। इसके अलावा याद रखना, ये ऐसा फ्रीडम फाइटर था जिसने क्या किया है, जिसने पार्टिसिपेट किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इसके अलावा इसने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया है, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इसने पार्टिसिपेट किया है, एंड इसने साल्ट सत्याग्रह के मूवमेंट में भी इसने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पर्सन इज दैट ये एक ऐसा पर्सन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस पर्सन, जेबी कृपलानी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गॉट हियर इज क्वेश्चन नंबर 9. As per the revised report of Moody's released in November 2022, what's the expected gross domestic product GDP growth rate of India in 22 and 23? अभी हमने ये डिस्कस किया, जो Moody's on 11th of November, डेट यहाँ पर मैं लिखूंगा 11th of November को Moody's slashed India's GDP growth projection to 7%. ये हमने अभी डिस्कस किया, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7%. इसके अलावा याद रखना, दिस विल बी द सेकंड टाइम इन एज मेनी मंथ्स दैट Moody's इन्वेस्टर्स जो है दे हैव कट द इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट्स फॉर 22. अगर हम सितंबर की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन को कट किया गया था 2022 ईयर के लिए फ्रॉम 7.7%। कहाँ से, पहले ये था 8.8% पे। ये कहाँ था 8.8%, अगर हम देखेंगे दिस वाज पैक्ड इन मे, इसको यहाँ से कट ऑफ किया था टू 7.7%. दिस इज द सेकंड टाइम. इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है दैट टू हैज कट इट्स प्रोजेक्शन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, उसने अपनी प्रोजेक्शन को भी आल्सो कट किया, एज वेल कट किया। तो कहां तक, 7% तक उसने कट किया। कहां से लेके, 7.5% से लेके। दिस अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 says who among the following has unveiled the 108 feet, ये आप याद रखना, अभी भी हमने डिस्कस किया, tall bronze statue of श्री नद प्रभु केम्पेगौड़ा इन बेंगलुरु। इनमें से किसने उसको अनवील किया जो 108 फीट टॉल ब्रोंज का स्टैचू बनाया था। तो याद रखना, PM नरेंद्र मोदी इज द पर्सन ऑन नवंबर 11 डेट आप याद रखिएगा, ऑन नवंबर 11 2022 जिसने अनवील किया 108 फीट टॉल ब्रोंज स्टैचू को, जो किसका था, श्री नद प्रभु केम्पेगौड़ा इन बेंगलुरु में ये किया गया था। इसके अलावा इस स्टैचू को और एक नाम से जानते हैं, दैट इज स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसको बनाया क्यों गया था, in order to commemorate the contribution of नद प्रभु, in order to remember the contribution of नद प्रभु केम्पेगौड़ा, the founder of बेंगलुरु। इसको फाउंडर ऑफ बेंगलुरु भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ
बेंगलुरु। ये भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ दिस स्टैचू, दिस हैज बीन मेड फ्रॉम 98 टन्स ऑफ ब्रोंज, 98 टन्स ऑफ ब्रोंज, दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा प्लस में यहाँ पर मैं लिखूंगा 120 टन्स ऑफ स्टील, 120 टन्स ऑफ steel. This is the composition that has gone into making this statue. Very very important point. ये भी आपके लिए बन जाता है। Next question is question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 says what is the currency of Cambodia? कैम्बोडिया की करेंसी क्या है? कैम्बोडियन रियल आपको अब सबको पता होगा, तो दिस इज द करेंसी ऑफ कैम्बोडिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, कैम्बोडिया के बारे में आपने जाना ही होगा। कैम्बोडिया इज द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर इसकी लोकेशन की बात करेंगे ये याद रखना। इसके अलावा कैम्बोडिया की बात करेंगे, हन सेन सर्व्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैम्बोडिया सिंस 1985। हन सेन ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कैम्बोडिया के, कहां से? सिंस 1985। जब ये यहां से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो ही हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लॉन्गेस्ट यहां पर मैं लिखूंगा लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कैम्बोडिया, Point number 1. Point number 2, he is also among the persons who have been the longest serving leaders in the world. Longest serving leaders इन वर्ल्ड, ये अमंग दोज पीपल भी यहाँ पर है। इसी के साथ हमने करेंसी की बात भी की, करेंसी ऑफ द कैम्बोडिया इज कैम्बोडियन रियल। क्लियर है ये बात भी। इसके अलावा अगर मैं आपको बोल दूं, जो कैम्बोडिया है ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर भी है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा, यूएन का मेंबर भी ये रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, आसियान का भी ये रहा है, ASEAN आसियान का भी मेंबर ये रहा है, RCEP का भी रहा है, ईस्ट एशिया समिट का, WTO का, नॉन अलाइंस मूवमेंट का, इन सब का ये मेंबर रहा है। दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वी गॉट हियर इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिचुएटेड? जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ICC है, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? पॉइंट नंबर 1, अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, दैट आर इन दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, यूएई में है इसके हेडक्वार्टर्स। यूएई में कहां पर? पर्टिकुलरली दुबई में है। अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करेंगे, दिस वाज फाउंडेड इन 15th of June 1909। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। क्या ये बात भी क्लियर है? इसके अलावा अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करेंगे, दिस वाज फाउंडेड बाय द इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल इन 1909, जो मैंने अभी अभी यहाँ पर बताया। और इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ के थे? एक तो थे ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के थे एंड साउथ अफ्रीका के थे। ये भी आप इन 3 कंट्रीज का नाम भी आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये बेसिकली एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी होती है, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट की जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 says, who has been awarded the prestigious Order of Merit by the Britain's King Charles III in recognition of his distinguished service to science? इनमें से किसको अवार्ड दिया गया था प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट? याद रखना, ऑर्डर ऑफ मेरिट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। किसने दिया था? ब्रिटेन किंग चार्ल्स III, जिसका नाम है इन रिकॉग्निशन बिकॉज इसने एक रिकॉग्नाइजेबल कंट्रीब्यूशन दिया है किसके? इन द फील्ड ऑफ साइंस। याद रखना, वेंकी रामाकृष्णन is the one who have been awarded the prestigious Order of Merit by the Britain's King Charles III in recognition of his distinguished services towards the science. इसके अलावा वेंकी के बारे में याद रखना, he has also received the Nobel Prize in Chemistry. Nobel Prize in Chemistry. इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, अवार्ड किया गया था। कब? 2009 में। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसने वर्क किस पे किया था? स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। नाउ इसके बाद जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है, जिसपे मैंने अभी आपको बताया कि इस पे भी हम बात करेंगे। व्हाट्स ऑर्डर ऑफ मेरिट? ये होता क्या है? दिस इज बेसिकली एन एक्सक्लूसिव मार्क ऑफ ऑनर। याद रखना, मार्क ऑफ ऑनर मैं यहाँ पर लिखूंगा, दिस इज द मार्क ऑफ ऑनर दैट्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश सॉवरियन, conferred by British sovereign। जो ब्रिटिश सॉवरियन क्या करती है? कन्फर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 says when is the public service broadcasting day observed? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे को ऑब्जर्व कब किया जाता है? 10th of November, 11th of November, 12th of November और 13th of November। तो याद रखना, जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे है, दिस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of November 2022। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, that's 12th of November। Point number 1. Point number 2, why this day is celebrated?
why this is celebrated, why this day is celebrated. इस डे को सेलिब्रेट किया क्यों किया जाता है? दिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन ऑर्डर टू कमेमोरेट ओनली विजिट, यहाँ पर मैं लिखूंगा ओनली विजिट ऑफ एमजी गांधी, महात्मा गांधी जी, टू द स्टूडियो ऑफ AIR, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली इन 1947। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट हर साल किया जाता है। दिस इज द फैंटास्टिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से इज who bagged a gold in 81 plus weight, ये इंपॉर्टेंट है। 81 प्लस, अभी मैंने इस पे क्या किया था, आपको एम्फसाइज किया करवाया था कि 81 प्लस याद रखना, 81 प्लस याद रखना। नाउ द क्वेश्चन हैज कम हियर, who bagged a gold in 81 plus weight category एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अमान जॉर्डन, उसका नाम क्या था? तो याद रखना अल्फिया खान। अल्फिया खान जो है, इन्होंने बैग की एक गोल्ड इन 81 प्लस वाली कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कहां पर हुई, जो अमान एंड जॉर्डन में हुई। क्या ये बात भी क्लियर है? ये बात भी क्लियर है यहाँ पर। अल्फिया खान, this is very important point. Next is question number 16. Question number 16 says the ICC board has unanimously elected whom as the independent chair of the इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC फॉर द सेकंड 2-year टर्म। इनमें से किसको अपॉइंट किया गया था? तो याद रखना ग्रेग ब्रैकले जो है, इनको अपॉइंट किया गया एज द इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर सेकंड 2-year टर्म, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा ब्रैकली के बारे में मैं आपको बोल दूं, ही वाज ओरिजिनली अपॉइंटेड एज ICC चेयर इन नवंबर 2020। ब्रैकली के बारे में मैं आपको बोल दूं, ही वाज आल्सो अपॉइंटेड एज ICC चेयर इन नवंबर 2020। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ब्रैकली के बारे में याद रखना, ही वाज प्रीवियसली द चेयर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट। जो न्यूजीलैंड क्रिकेट है, NZC जो है, न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है, इसका जो प्रीवियसली चेयर था वो कौन था? ब्रैकले ही था। एंड ही हैज बीन आल्सो द डायरेक्टर ऑफ ICC मेंस वर्ल्ड कप 2015, डायरेक्टर ऑफ ICC मेंस वर्ल्ड कप 2015। ये पॉइंट यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 से इज इन नवंबर 2020 द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हैज रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, which other countries have also been removed from the list। ये हमने अभी भी डिस्कस किया कि जो इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है, उन्होंने इंडिया को रिमूव किया अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। ये तो हमने अभी देख लिया, बट अलॉन्ग विद इंडिया आपको ये भी याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने किस किस को रिमूव किया है। तो याद रखना है अलॉन्ग विद इंडिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है उन्होंने रिमूव किया है इटाली, इसके अलावा सिंगापुर, इसके अलावा मैक्सिको एंड थाईलैंड, वियतनाम। तो इनको यहाँ पर क्या किया गया था? इनको यहाँ पर रिमूव किया गया था फ्रॉम द मॉनिटरल लिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप याद रखना, ये तो हो गया रिमूव किसको किया गया, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा रिमूव्ड। अब यहाँ पर इंक्लूडेड कौन है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो अगर हम इंक्लूड की बात करेंगे तो वहां पर चाइना है, चाइना के अलावा जापान है, जापान के अलावा जर्मनी है, एंड मलेशिया है, सिंगापुर है, ताइवान है। ये बात आप याद रखना। अब इनको रिमूव क्यों किया गया? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दीज कंट्रीज जो जिनको रिमूव किया गया लिस्ट से, दे हैव मेट ओनली 1 आउट ऑफ द 3 क्राइटेरियाज फॉर 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स। उनके पास एक ही क्राइटेरिया को वो फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ and Cambodian Prime Minister Hun Sen exchanged how many MOUs in areas of culture, wildlife and health। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है एंड कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हन सेन एक्सचेंज जो है, इन्होंने एक्सचेंज किया 4 MOUs साइंड इन द एरियाज ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो ये 3 MOUs इन्होंने साइन की, दिस इंक्लूड वन अमंग द फील्ड ऑफ, एक तो इनमें से था, एक था इन द फील्ड ऑफ, अमंग द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, ये याद रखना। एंड जो सेकंड MOU साइन की गई थी, दैट वाज साइंड रिगार्डिंग द reintroduction of tigers in Cambodia। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे, सॉरी दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 20। ओके, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 20 एंड यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 सेज
In which city will the Home Minister organize the third ministerial conference on countering financing of terrorism? No money for terror. ये हमने अभी भी ये भी हमने डिस्कस किया। जो होम मिनिस्ट्री है ये ऑर्गेनाइज करेगी द थर्ड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, याद रखना, थर्ड मिनिस्ट्रियल conference will be organized on countering finance of terrorism. That's no money for terror. It will be held in New Delhi. याद रखना, will be held in New Delhi. और कब किया जाएगा? 18th of November को 2022 को। डेट आप यहाँ पर याद रखिएगा। ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, द 2-day conference will aim at progress the discussion on the combating terrorist progress in the discussion on combating the terrorist financing, जो बेसिकली जो ओरिजिनली हेल्ड की थी इंटरनेशनल बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटीज, जो प्रीवियस 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई पेरिस एंड मेलबोर्न में। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो प्रीवियसली हेल्ड हो गई थी, प्रीवियसली हेल्ड इन पेरिस में हो गई थी, एंड कहां पर हो गई थी? मेलबोर्न में। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ओके। सो फॉर टुडे दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।